So what we have seen in last lecture, do you remember? Do you remember what we have seen in last lecture? What we started with? What we started with? So we have started the third chapter. If I'm not wrong. If I'm not wrong. Then we have started with the third chapter. Understanding harmony in the family and society. Harmony in human-human relationship. So, okay. And so out of this, we have started with understanding harmony in the family. So harmony in the family, how it can be done, how it can be achieved. So what is family? What is relation? So family is the basic unit or building block of human organization. This we have seen how it is. Yeah. Then we have seen relationship in family. Relationship is already there. You did not to build it. क्लिअर तुम्हाला ती परत बिल्ड करायची नाहीये यू नीड नॉट टू बिल्ड that relationship is already in existence what you need to do is you need to identify that relation and you need to try to fulfill that relationship आपको बस क्या करना है ना आपको उस रिलेशनशिप को पहचानना है और उसे उसकी पूर्तता के लिए काम करना है गेटिंग इट देन वी हैव सीन द समृद्धि prosperity. So what is the prosperity in family? How the prosperity in family can be achieved? Clear? So family में prosperity हम कैसे ला सकते हैं वो हमने देखा उस prosperity को लाने के लिए किस किस के रोल क्या है how we should follow our roles है ना so उसमें हम roles में हमने देखा है ना आवश्यकता की पूर्ति की शुरुआत परिवार में होती है उसके लिए हमने roles देखे क्या क्या रोल है शरीर की देखरेख खासकर बच्चों और रोगियों और वृद्धों के लिए करनी चाहिए देन समृद्धि के लिए उत्पादन का क्रियान्वयन करना चाहिए पोषण संरक्षण और सही समझ को विकसित करना चाहिए है ना ये किसको करना चाहिए ये बच्चों के लिए है ये बड़ों के लिए है ना सही समझ को जीना और प्रमाणित करना ये बड़ों का काम है ना दिस वी हैव सीन so while traveling towards or while moving towards the prosperity what are our roles by being in family में रह के अगर हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए अगर हमें समृद्धि चाहिए तो हमारे रोल्स क्या होने चाहिए हमें क्या करना चाहिए व्हाट शुड बी अवर रोल इन व्हाट पोजीशन वी शुड बी ठीक है सो हम बच्चों में आते हैं ना यू ऑल गाइस कम अंडर दिस बच्चों में आते हैं सो आपका क्या करना सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू एक्सपेक्ट द राइट अंडरस्टैंडिंग है ना सो आपको क्या सीखना है कि राइट अंडरस्टैंडिंग सीखना है राइट अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिस फॉर एवरीथिंग हर एक एक्टिविटी के लिए बेसिस क्या है तो राइट अंडरस्टैंडिंग है जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था देन अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप देयर वी हैव सीन है ना सो टू टाइप्स सो खुद में रिलेशनशिप और दो सेल्फ में है ना one self and two self getting it see this you have seen one self and another self this we have seen understanding the relationship between one self and another self है ना हमने देखा था रिलेशनशिप किन में होती है तो वन सेल्फ और अनदर सेल्फ में होती है रिलेशनशिप डजंट लाई इन बॉडी में रिलेशनशिप नहीं है रिलेशनशिप किस में है तो सेल्फ में है रिलेशनशिप खुद में है हमारे मन में रिलेशनशिप होती है हमारे विचारों में रिलेशनशिप होती है getting it this we have seen in previous chapter we have seen the definition of human being so human being is the combination of self and body human being is combination of self and body so relationship किन में होती है family और relationship किन में होती है तो self में होती है one self and another self है ना so इनमें होती है relationship getting it so उस relationship की fulfillment किस में होती है feelings में होती है right evaluation से होती है और वो हमें क्या देती है म्यूचुअल हैप्पीनेस getting it so this we have seen then we have seen the 9 values in relationship है ना so हमने देखा था ना कि values को हमें क्या करना है we need to recognize the values then we need to fulfill the values then we need to evaluate the fulfillment of values और उससे क्या आता है तो mutual fulfillment आता है so उसमें हमने देखा था last lecture में what we have seen is 9 values which are the 9 values that we have seen here so let us will move ahead with है ना ये 9 values हमने देखे थे so this I just had a quick review हमने अभी क्या देखा कि quick review क्या हमने last lecture में क्या देखा what we have seen in last lecture that part we have seen now clear so these are the 9 feelings in relationship or values in relationship कौन से है trust
ट्रस्ट क्या है? सो फाउंडेशन, सबसे बेसिक। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट, उसके बाद आता है अफेक्शन, उसके बाद आता है केयर, उसके बाद आएगा गाइडेंस, उसके बाद आएगा रेवरेंस, उसके बाद आएगा ग्लोरी, उसके बाद आएगा ग्रैटिट्यूड, उसके बाद आएगा लव। सो लव क्या है? इट्स कंप्लीट। सो ऑल टोटल, सब ये सभी 8 वैल्यूज का सार, 8 वैल्यूज का सार क्या है? लव। So we will see one by one what is mean by each value. अब हम देखेंगे हर एक वैल्यू का मतलब क्या है, what every value means. देखिए, ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स विश्वास। ट्रस्ट को हम क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं, है ना। इन डिटेल में हम देखेंगे विश्वास क्या है, एक्चुअल में विश्वास की डेफिनेशन क्या हो सकती है ना, वो हम यहाँ पे प्रस्तावित करेंगे और डिस्कस करेंगे इस बात पे। दूसरा रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान। थर्ड वन अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब आएगा ममता, अपेक्षा का मतलब आएगा ममता। उसके बाद केयर, केयर मीन्स स्नेह। देन गाइडेंस, गाइडेंस मीन्स वात्सल्य, गाइडेंस का मतलब यहाँ पे हम लेंगे वात्सल्य। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट कैन बी काउंटेड एज वात्सल्य। हम वात्सल्य, गाइडेंस को वात्सल्य कैसे कह सकते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, हम डिटेल में देखेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। देन रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स श्रद्धा, है ना। हम रखते हैं ना, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, है ना, किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखते हैं, अपने पिताजी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हमारे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हमारे मित्र के प्रति भी हम कभी कभी श्रद्धा रखते हैं, है ना। देन ग्लोरी, गौरव। देन ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट है लव, उसका मतलब है प्रेम। ये है 9 वैल्यूज, दीज आर दी 9 वैल्यूज इन रिलेशनशिप, है ना। अगर हमें फैमिली में, हमें अगर सोसाइटी में हमारी रिलेशनशिप बनानी है, इफ वी वांट टू डेवलप द रिलेशनशिप, देन वी नीड टू बी विथ दीज 9 वैल्यूज। हमें अगर रिलेशनशिप्स बनाने हैं, अगर हमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट अचीव करनी है, मतलब खुद की खुशी और दूसरों की खुशी अगर हमें अचीव करनी है ना, अगर हमें खुद के और दूसरों के दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है, जर आपल्याला स्वतःच्या आणि दुसऱ्याच्या एक्सपेक्टेशन्स पूर्ण करायच्या आहेत, तर आपल्याकडे काय पाहिजेत? या 9 व्हॅल्यूज पाहिजेत। आपल्याकडे 9 व्हॅल्यूज पाहिजेत म्हणजे काय पाहिजे? सो वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 9 वैल्यूज विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। ये 9 वैल्यूज का मीनिंग हमें पता होना चाहिए विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ मीनिंग पता हो तो चलेगा क्या? विल इट बी सफिशिएंट? सो नो, सिर्फ मतलब पता होने से नहीं चलेगा। सो हमें क्या करना है? वी नीड टू इनकॉर्पोरेट दीज 9 वैल्यूज इन आवर रूटीन। ये 9 वैल्यूज को हमारे रूटीन में हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं, हमारे बिहेवियर में इन 9 वैल्यूज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। We need to implement these 9 values in our behavior, in our work, and along with the implementation in our lives, we need to try to make others also to understand these 9 values. So हमें खुद से implement करना है और हमें क्या करना है? दूसरों को भी इसे आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है। म्हणजे आपण स्वतः तर ह्या इम्प्लिमेंट करायच्याच, प्लस आपण दुसऱ्यांना पण इनकरेज करायचं या 9 व्हॅल्यूज त्यांच्या लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट करण्यासाठी। आता हे का करायचं? जर दुसऱ्यांनी त्यांच्या मनामध्ये ह्या 9 व्हॅल्यूज इम्प्लिमेंट केल्या नाहीत, तर ते दुःखी राहतील किंवा ते तुम्हाला कधीतरी दुःखी करतील। दुःखी करतील म्हणजे त्यांचा तुम्हाला कधीतरी त्रास होऊ शकतो। तुम्ही एकटेच विश्वास ठेवताय, तुम्हीच समोरच्यावरती ट्रस्ट करताय, पण समोरचा तुमच्यावर ट्रस्ट करत नसेल, सो दॅट मे बी अ रिझन फॉर युअर अनहॅपीनेस. बट इफ यू मेक दॅट पर्सन, जर तुम्ही दुसऱ्याला मेक दॅट अनदर सेल्फ टू इनकल्केट दिस ट्रस्ट इन हिज बिहेवियर, देन अल्टिमेटली यू विल बी हॅपी. जर समोरच्याने पण या 9 व्हॅल्यूज त्याच्या बिहेवियर मध्ये इनकॉर्पोरेट केल्या, तर हॅपीनेस कोणाला मिळणार आहे? तुम्हालाच मिळणार आहे. रेडी? आपल्याला त्रास नेहमी होतो कोणामुळे माहिती का? स्वतःच्या बिहेवियर मुळे कधी त्रास होत नाही असं वाटतं आपल्याला. आपल्याला त्रास जास्त कशामुळे होतो? तर दुसऱ्यांच्या बिहेवियर मुळे होतो.
We get irritated because of the behavior of others. So इसलिए हमें क्या करना है? So इसलिए हमें ये करना है ना, यहाँ पे हमने देखा था ये करना है, सही समझ को जीना और प्रमाणित करना, है ना. दिस वी नीड टू डू, है ना. वी नीड टू लीव दीज 9 वैल्यूज और वी नीड टू सर्टिफाई दिस, यस ये करेक्ट है, एंड वी नीड टू मेक अदर्स टू इम्प्लीमेंट इट इन देयर लाइव्स. क्लियर? सो देन विश्वास हो गया, उसके बाद रिस्पेक्ट सम्मान, है ना. वी हैव सीन अफेक्शन, ममता, स्नेह, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम. So 9 values. Now let us will see what is this in detail. Fulfillment of feelings in relationship and their evaluation leads to mutual happiness. When we have these naturally acceptable feelings in self, we share them with others, and when we are both able to evaluate the feelings rightly, it leads to mutual happiness. That is the happiness of oneself as well as the happiness of other. यही जो अभी मैंने बताया आपको कि वो 9 वैल्यूज हमें पहले खुद में इनकॉर्पोरेट करने हैं और उसको हमें प्रमाणित करना है और दूसरों को हमें प्रेरित करना है वो 9 वैल्यूज उनमें को इनकॉर्पोरेट करने के लिए. उससे क्या होगा? We will reach a state of mutual happiness. So currently क्या है? Current situation में क्या हो रहा है? In current situation, that is appraisal of current status, means what is the current status? So the problem today is that we assume ourselves to be the body. हम अभी खुद को क्या समझते हैं? कि body समझते हैं. And we assume the relationship on the basis of body and not the feelings. We therefore fail to understand relationship and consequently we fail to fulfill it despite all our good intentions. होता क्या है ना, जब हम रिलेशन के बारे में सोचते हैं ना तो हम सेल्फ के बारे में नहीं सोचते. वी थिंक ऑफ बॉडी, है ना. हम फीलिंग्स को महत्व नहीं देते, है ना. हम फीलिंग्स को महत्व नहीं देते, हम भौतिक वस्तुओं को महत्व देते हैं, है ना. हम भौतिक वस्तुओं को महत्व देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप क्या सोचते हो ना, अगर उसको मैं कोई तो अच्छा खिलौना लाके दूंगा, है ना. अगर मैं उसको कोई अच्छा खिलौना लाके दूंगा, अगर मैं उसे कैडबरी टॉफी कुछ तो लाके दूंगा तो वो हैप्पी हो जाएगा, है ना. वी फील इट दैट वे. Getting it? This is what we assume the relationship on the basis of body. लेकिन देखिए, अगर हम उसको खिलौना ला के देते हैं, we give him a toy, how many days he will play with the toy? 1 day, 2 day, max 3 days, finish. Then he will start losing the interest in that toy. If you'll give him the Cadbury, chocolate, so how much time? 2 minutes, 5 minutes only. He will have the happiness of 2 minutes to 5 minutes. But if you will spend some time with him, अगर आप उस छोटे बच्चे के साथ अपना कुछ वक्त बिताते हो, if you share your time with him, आप उसके साथ खेलते हो, आप उसके साथ बातें करते हो, so next time whenever he will see at you, जब भी वो आपकी तरफ देखेगा, so he will gain the happiness, वो खुश होगा. देखिए, आप अगर किसी भी छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, उनके साथ वक्त आप बिताते हैं ना, तो वो आपको जब भी देखेंगे ना वो खुश हो जाएंगे. Getting it? क्यों? Because you built the relationship on the basis of feelings. आपने क्या किया? आपने उसके साथ खेला, वो जो कि उसके नेचुरली एक्सपेक्टेशंस है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है उसका खेलना छोटे बच्चों का. आपने क्या किया? वो फुलफिल किया. दैट इज व्हाई ही बिकेम हैप्पी एंड दैट हैप्पीनेस इज इन कंटिन्यूएशन. वो हैप्पीनेस कंटिन्यूएशन में है. वो कैसे पता चलेगा? जब भी वो आपको देखेगा वो खुश होगा. ठीक है? सो मतलब क्या हुआ? उसका हैप्पीनेस इन कंटिन्यूएशन हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि क्या हुआ? सो यू हैव प्लेड द रिलेशनशिप विथ ऑन द बेसिस ऑफ, आपने रिलेशनशिप को सराह किया किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स, है ना.
सो आपने आपका रिलेशनशिप का निर्वाह किस बेसिस पे किया? फिलिंग्स पे. तुम्ही तुमचं रिलेशन कसल्या बेसिसवर केलं? फिलिंग्सच्या बेसिसवर केलं, है ना? कधी पण बघा, लहान बाळ काय करतं माहिती का? लहान बाळ तुमच्या डोळ्यामध्ये बघतं. जर कुठलेही लहान बाळ तुमच्याकडे यायला आकर्षित होत असेल तर याचा अर्थ तुमच्या डोळ्यामधल्या फिलिंग्स त्याच्याबद्दलच्या चांगल्या आहेत, त्याच्यामुळे ते तुमच्याकडे येतं. पण जर तुम्ही त्या लहान बाळाकडे डोळे उतारून बघा, रागाने बघा, ते तुमच्याकडे कधीच येणार नाही. He will never turn to you because of feelings. You express your feelings with your eyes. तुमच्या डोळ्यातून तुम्ही तुमच्या फिलिंग्स एक्सप्लेन करता. getting? So this is what all about. getting? So that kid आता त्या लहान बाळाला कसं आहे की ही कम्प्लिटली वर्क ऑन द नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. लहान बाळ जी असतात ना छोटीशी, ती पूर्णपणे नॅचरल ऍक्सेप्टन्सवर काम करतात. त्यांना नॅचरली ज्या गोष्टी ऍक्सेप्टेबल आहेत ना त्याच ते घेतात. त्यांना जे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नाहीये ते त्या घेत नाहीत. ते रडतात, गोंधळ घालतात. गेटिंग? सो तुम्हाला जर एखादी गोष्ट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे की नाही हे चेक करायचं असेल ना, लहान मुलांना विचारायचं. गेटिंग? तर त्याला कळणार नाही तो भाग वेगळा, बट यू कॅन हॅव अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटेशन. गेटिंग? सो दॅट इज ऑल. चलो, the problems are due to absence of one or more of the right feelings in the self, and we try to make up this gap by physical facility. है ना? हम फिजिकल फैसिलिटी से फिल करना चाहते हैं गैप जो कि रिलेशनशिप में है, जो कि फीलिंग्स में है, लेकिन वो पॉसिबल है क्या? नहीं. गेटिंग इट? सो वो पॉसिबल नहीं है. व्हाट डू यू थिंक? की टेकअवेज अभी इसमें हमें क्या देखना है? व्हाट वी नीड टू गेट फ्रॉम दिस पार्ट? सो रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट. रिलेशनशिप जो है फैमिली में हमारे परिवार के सदस्यों के साथ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है. आपको नए से बनाना नहीं है. वी डोंट हैव टू क्रिएट इट, रादर वी ओनली हैव टू रिकॉग्नाइज एंड फुलफिल इट. आपको क्या करना है? उस रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना है और उसे फुलफिल करना है. द फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन. है ना? ह्यूमन इंटरेक्शन कहाँ से शुरू होता है? फैमिली से. हम फैमिली से सीखते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन. The basic issue in the family is that of relationship. In relationship, there are 9 feelings or 9 values hai, that can be clearly understood and lived with. There is harmony in the family, mutual happiness in the family, when we understand the feelings and ensure in our livings. So now we will go ahead with these feelings. These feelings के साथ हम जाते हैं. Let us will go ahead with trust. Trust. क्या है ट्रस्ट? ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट इज ए फीलिंग. ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट ये फीलिंग है ना? फीलिंग ऑफ द ट्रस्ट. ट्रस्ट इज टू बी अश्योर्ड दैट द अदर इंटेंड्स टू मेक मी हैप्पी और प्रॉस्परस. अब ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है ये समझ नहीं आएगा, है ना? अगर हम पहले से देखेंगे ना इसे तो ये समझ नहीं आएगा. सो इसके लिए वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज 8 क्वेश्चंस. हम पहले ये 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इन 8 क्वेश्चंस के बेसिस पे हम ये डेफिनेशन देखेंगे, ट्रस्ट की डेफिनेशन, है ना? जस्ट ये क्वेश्चंस कहाँ गए गाइस? Just wait. Sure. Now we'll discuss these 8 questions. So what are these questions and how the questions are related? How the questions are related with the trust? We'll see. Do I want to make myself happy? मुझे खुद को हैप्पी रखना है क्या? मला स्वतःला खुश ठेवायचं आहे का? 1B is, am I able to make myself always happy?
क्या मैं खुद को हमेशा खुश रख सकता हूं? मी स्वतःला कायम आनंदी ठेवू शकतो का? पहिला प्रश्न आहे, मला हॅपी व्हायचंय का? मला आनंदी व्हायचंय का? आणि दुसरा प्रश्न आहे, मी मला स्वतःला कायम आनंदी ठेवू शकतो का? सेकंड क्वेश्चन, डू आय वॉन्ट टू मेक दी अदर हॅपी? मला दुसऱ्यांना आनंदी ठेवायचंय का? आणि टू बी क्वेश्चन इज, एम आय एबल टू मेक दी अदर्स ऑलवेज हॅपी? मी दुसऱ्यांना नेहमी आनंदी ठेवू शकतो का? थर्ड, डज दी अदर वॉन्ट टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ हॅपी? म्हणजे जो कोणी दुसरा व्यक्ती आहे, जो कोणी समोरचा व्यक्ती आहे है ना, लेट इट बी युअर ब्रदर, लेट इट बी युअर फादर, लेट इट बी युअर फ्रेंड, हा तुमचं आहे जे कोण आहे त्याला स्वतःला हॅपी राहायचंय का? उसे खुद को हैप्पी रहना है क्या? थर्ड बी इज द अदर एबल टू मेक हिमसेल्फ पब्लिक हरसेल्फ ऑलवेज हैप्पी? है ना, क्या उसे हैप्पी रहना है? और दूसरा प्रश्न है, क्या वो खुद को हैप्पी रख सकता है? त्याला आनंदी राहायचंय का? आणि दुसरा प्रश्न आहे, तो स्वतःला आनंदी ठेवू शकतो का? Third question. And the fourth one, which is very, very, very important, is, does the other want to make me happy? Does the other want to make me happy? म्हणजे दुसरा व्यक्ती जो कोणी आहे तो मला हॅपी ठेवू इच्छितो का? म्हणजे त्याला वाटतंय का की मी आनंदी व्हावं, त्याला मला आनंदी ठेवायचं आहे का, है ना? डज दी अदर वॉन्ट टू मेक मी हॅपी? तो मला आनंदी ठेवू इच्छितो का? अँड फोर्थ बी इज दी अदर एबल टू मेक मी ऑलवेज हॅपी? तो समोरचा व्यक्ती मला कायम आनंदी ठेवू शकतो का? Let us will take example of our brother here for third question and fourth question. थर्ड आणि फोर्थ क्वेश्चन साठी दी ऑदर म्हणजे आपण आपला भाऊ घेऊया, है ना? दी ऑदरला आपण काय म्हणूयात? आपला भाऊ. तर थर्ड क्वेश्चन काय म्हणतो की माझा भाऊ जो आहे त्याला स्वतःला आनंदी राहायला आवडतं का? माझ्या भावाला स्वतःला आनंदी राहायला आवडतं का? आणि दुसरा प्रश्न काय आहे, माझा भाऊ स्वतःला आनंदी ठेवू शकतो का? हा झाला थर्ड ए, थर्ड बी. फोर्थ ए काय आहे, माझा भाऊ मला आनंदी करू इच्छितो का? माझा भाऊ मला हॅपीनेस देऊ इच्छितो का? आणि फोर्थ बी आहे, माझा भाऊ मला नेहमी हॅपी ठेवू शकतो का? माझा भाऊ मला नेहमीच आनंदी ठेवू शकतो का? तर आपल्याला हे बघायचं. तर हे जे चार प्रश्न आहेत ना, हे चार प्रश्न पहिले 1A, 2A, 3A, 4A, these four questions are related to intention. What is the intention? First two are intentions of ourselves. पहले दोन हे आपले इंटेंशन्स आहेत, हमारे खुद के इंटेंशन्स है फर्स्ट टू. The last two are the intentions of other one, other self. हे जे दुसरे दोन आहेत ना ते अदर सेल्फ म्हणजे आपल्या भावाचे इंटेन्शन्स. जसं की आपण इथे एक्झाम्पल घेतलं की आपला भाऊ, दी अदर वन इज आपला भाऊ. सो ही कॅन बी एनी वन. ठीक आहे, आपला भाऊच आहे असं नाही, आपला मित्र असू शकतो, आपले वडील असू शकतात, आपली बहीण असू शकते, आपली आई असू शकते, आपला मित्र असू शकतो, है ना, एनी वन. आपण काय घेतलं एक्झाम्पल, भाऊ, है ना. आणि जे 3 नंबर आणि 4 नंबर जे आहेत ते अदर सेल्फ म्हणजे आपल्या भावाचे आहेत. काय आहेत ते? इंटेन्शन्स आहेत. These all intentions give answer on the basis of natural acceptance. ह्या चारही प्रश्नांचं उत्तर 1A, 2A, 3A, 4A, ह्या चारीचं उत्तर आपल्याला कशावरती द्यायचं आहे? आपल्या नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वर द्यायचं आहे. नॅचरली आपल्याला काय ऍक्सेप्टेबल आहे? नॅचरली मला हॅपी व्हायला आवडतं, यस. सो द आन्सर फॉर फर्स्ट विल बी यस. सेकंड, मला दुसऱ्याला हॅपी ठेवायला आवडतं का? मला माझ्या भावाला हॅपी ठेवायला आवडेल का? यस, मला आवडेल. मला दुसऱ्याला आनंदी ठेवायला पण आवडतं, यस. सो इट्स आन्सर इज ऑल्सो यस. द थर्ड वन, माझ्या भावाला त्याला स्वतःला आनंदी राहायचंय का?
Yes, in the world everyone want to be happy. ह्या जगामध्ये प्रत्येकाला आनंदी व्हायचं आहे. एव्हरीवन वॉन्ट टू बी हॅपी. सो दॅट इज वाय द आन्सर फॉर थर्ड इज ऑल्सो यस. And the fourth one, here is the question mark. चौथ्याला क्वेश्चन मार्क असतो आपल्या मनात है ना. वी हॅव क्वेश्चन मार्क फॉर दिस फोर्थ इन अवर माइंड. पहिल्या तीनला यस आहे, डोळे झाकून आपण सांगू शकतो. पण चौथ्याचं काय होतं, व्हेन द फोर्थ क्वेश्चन कम्स लाइक कि क्या सामने वाला मुझे खुश रखना चाहता है, क्या मेरा भाई मुझे खुश देखना चाहता है, इस पे क्वेश्चन मार्क है ना. सो वी ऑलवेज से है ना, त्याला माझं बघवतच नाही, माझ्या भावाला माझं बघवतच नाही. मला काय चांगलं आणलं की तो चिडतो, त्याला राग येतो, तो जळतो. Getting it? So this is the feeling in our mind. So here comes the question mark. Does the other want to make me happy? Many a times we have this question. Many a times we have this question in our mind. जब हम इसका आंसर यस लिखेंगे, when we will write its answer as yes, then we say we have a feeling of trust. जब हम इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यस लिख पाएंगे ना, जब हम इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यस लिख पाएंगे ना, तब हम उसे कहेंगे फीलिंग ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट की फीलिंग, करिए ये है ट्रस्ट की फीलिंग. इन 4 क्वेश्चंस का आंसर जब यस आएगा तब. ये जो 4 क्वेश्चंस है ना, ये 4 क्वेश्चंस है कॉम्पिटेंस पे. कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता. कॉम्पिटेंस का अर्थ क्या तो क्षमता. एम आई इनफ कॉन्फिडेंट, एम आई इनफ कॉन्फिडेंट टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी. क्या मैं खुद को हमेशा हैप्पी रख सकता हूं? अगर इसका आंसर यस आया. दूसरा, एम आई एबल टू मेक दी अदर ऑलवेज हैप्पी. क्या मैं दूसरों को हमेशा खुश रख सकता हूं? एम आई एबल टू मेक अदर्स ऑलवेज हैप्पी. क्या मैं दूसरों को हमेशा खुश रख सकता हूं? इसका आंसर भी अगर यस आया तो इसका मतलब है फीलिंग ऑफ ट्रस्ट ऑन सेल्फ. फीलिंग ऑफ ट्रस्ट ऑन सेल्फ, आत्मविश्वास. इसे हम कह सकते हैं आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना. इन 2 क्वेश्चंस का आंसर अगर यस आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम इन 2 प्रश्नों का उत्तर यस रखने की क्षमता रखेंगे, तब हम कह सकते हैं हमें खुद पे विश्वास है. ज्या वेळेस पहिल्या 2 प्रश्नांचं उत्तर आपण यस म्हणू शकू एवढी क्षमता आपल्यात येते, त्यावेळेस म्हणतो आपण आपला स्वतःवरती विश्वास आहे, माझ्यामध्ये आत्मविश्वास आहे, है ना. आपण कधी म्हणतो माझ्याकडे आत्मविश्वास आहे? जर ह्या 2 प्रश्नाचं उत्तर यस आलं तर. थर्ड, इज द अदर एबल टू मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑलवेज हॅपी. माझा भाऊ स्वतःला आनंदी ठेवू शकतो का? दुसरा, इज द अदर एबल टू मेक मी ऑलवेज हॅपी. माझा भाऊ मला कायम आनंदी ठेवू शकतो का? दिस इज ऑल्सो, याचा आन्सर जर तुम्ही यस आणलं तर ते काय इंडिकेट करतं? दिस यस इंडिकेट्स युअर ट्रस्ट ऑन अदर्स. तुमचा दुसऱ्यांवरचा विश्वास. गेटिंग इट? तुमचा दुसऱ्यांवरचा विश्वास. क्लिअर? सो हे 2 विश्वासचे प्रकार कळले का? स्वतःवरचा विश्वास आणि दुसऱ्यांवरचा विश्वास. हा कसा जज करायचा? ह्या 4 क्वेश्चन्स, है ना. विथ दीज 4 क्वेश्चन्स यू कॅन आन्सर. ओके ओके. सो लेट अस गो अहेड विथ रीड व्हाट इज रिटन हियर.
The questions 1A to 4A relate to natural acceptance, the intention. Question 1B to 4B relate to the competence, the ability. By and large, as far as the statements about the intention, that is natural acceptance, are concerned, there is a tick mark in 1A, 2A, 3A. म्हणजे 1A, 2A, 3A correct आहे, बरोबर आहे, yes आहे. There is a question mark in 4A, 4A वर question mark है. When we look at the competence, the ability, there is a question mark right from the beginning. इथं सगळ्यातच प्रश्न आहे. There is a question mark 1A, 1B, 2B, 3B and 4B. There's a big question mark. 4B वर तर सगळ्यात मोठा असतो. Okay, the same thing is mentioned here in the with the help of drawings. अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? इंटेंशन और कॉम्पिटेंस, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? नाउ इफ यू ट्राई टू एनालाइज योर ओन रिस्पॉन्सेस, मेनी थिंग्स विल गेट क्लैरिफाइड, है ना? अगर हम ऊपर के 8 प्रश्नों के उत्तर हम खुद से देते हैं, हा? और उन प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज, है ना? If we'll analyze those 8 questions, then what we'll see, we'll find that while evaluating yourself, you evaluate on the basis of your intention, natural acceptance. You think you are a good person as your intentions are good. आपण नेहमी काय म्हणतो स्वतःला, मी चांगलाच आहे हो, मी दुसऱ्यांबद्दल नेहमी चांगलाच विचार करतो, है ना? ते लिहिलं इथं, दॅट इज रिटन हियर. You think that you are a good person, तुम्हाला जसं वाटतं तुम्ही चांगले आहात. Your intentions are good, तुम्हाला वाटतं तुमचे intentions चांगले आहेत. But on the other hand, when you evaluate the other, पण ज्यावेळेस तुम्ही दुसऱ्यांना इव्हॅल्युएट करता, you evaluate him on the basis of his or her competence. हा फरक कळला का? म्हणजे ज्यावेळेस आपण स्वतःला जज करतो, जब हम खुद को जज करते हैं, जब हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं, तो हम किस पे इवैल्यूएट करते हैं? हमारे इंटेंशंस पे. और जब हम दूसरों को इवैल्यूएट करते हैं, तो हम दूसरों का इंटेंशन नहीं देखते, हम दूसरों का कॉम्पिटेंस देखते हैं, है ना? दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में हम विचार नहीं करते. दूसरा हमारे साथ कैसा बिहेवियर करता है, हम उस बिहेवियर पे उसको जज करते हैं. You find that he or she is not able to make you happy all the time. Many times or most of the time he ends up making you unhappy, है ना? जैसे कि हमने भाई का एग्जांपल लिया था, आपके भाई के इंटेंशंस आप नहीं देखते, बस होता क्या है ना, आपकी भाई की करतूतों की वजह से आप अनहैप्पी होते हैं. Therefore you think that the other wants to make you unhappy, इसलिए आप क्या सोचते हैं कि वो मुझे तकलीफ देना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं. You have a doubt on others' intention, आप दूसरों के इंटेंशन पे डाउट रखते हो, इसका मतलब है there is a lack of trust. On the basis of lack of competence, we conclude about the lack of intention of the other. When we doubt their intention, instead of accepting the other as a relative, we have a feeling of opposition. This is the common mistake that we make in relationship today. ये हमारे relationship की common mistake है. क्या mistake है? कि हम दूसरों को उनके competence से judge करते हैं, हम उनके intentions पे ध्यान नहीं देते, हम ये नहीं देखते कि उसका इंटेंशन क्या है. What is his intention? That we don't look at. We only look at what he did, है ना? सो आपको करना क्या है ना? जब ये बात होती है, क्या होती है बात की, सामने वाले की हरकतों से आप अनहैप्पी होते हो, है ना? सामने वाला मतलब आपका भाई आपके लिए कुछ करना चाहता है और कुछ तो गड़बड़ होती है और आप अनहैप्पी हो जाते हो, है ना? कुछ तो गड़बड़ हो जाती है और आप अनहैप्पी होते हो, तो उसके बाद आपकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए? What should be your reaction at that time? So there are 4 options given. First one, try to improve upon his competence.
उसके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। गेट इरिटेट, इरिटेट हो जाइए। गेट एंग्री, गुस्सा हो जाइए। हैव अ फीलिंग ऑफ अपोजिशन। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। आपको उसका कॉम्पिटेंस बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। You need to make him to improve upon his competence. You need to make him to improve upon his competence. Not to get irritated, not to get angry, not to have a feeling of opposition about him. ये तीनों आपको नहीं करना चाहिए जो कि हम हमेशा करते हैं, है ना? We always get irritated, we always get angry, we always have a feeling of opposition about our, you know, हमारे भाई के लिए, है ना? वी ऑलवेज हैव द फीलिंग ऑफ अपोजिशन। लेकिन हमें करना क्या है? वी नीड टू फोकस ऑन आंसर ए। वी नीड टू ट्राई टू इंप्रूव अपॉन हिज कॉम्पिटेंस। Now with these indicators we find out how many people are there in our life on whom we have trust on intention which is unconditional and continuous. अभी हमने क्या देखना है, क्या हमें सोचना है कि फाइंड आउट, फाइंड कीजिए कितने लोग हैं आपके रिलेशनशिप में जिन पे आपको विश्वास है। मतलब आप उन पे ये विश्वास रखते हैं कि वो हमें खुश रखना चाहते हैं, वो हमें खुश रखना चाहते हैं। देखिए ना, सिंपल सा एग्जांपल हमारे फॅमिली में देखिए, है ना? आपकी माताजी, तुमची आई, सगळ्यांची आपली आई असते, है ना? हमारी माँ होती है। उसका इंटेंशन हमेशा क्या रहता है रे? हमें हैप्पी रखना ही होता है ना। हमारी माँ का हमेशा इंटेंशन क्या रहता है? हमें हैप्पी रखना रहता है ना? इसलिए तो वो हमेशा डांटती है हमें। मोबाइल पे अगर ज्यादा देर गेम खेलते हैं तो हमें डांटती है, खबर क्या आपल्याला? ज्यादा देर दोस्तों के साथ बाहर घूमते हैं तो हमें डांटती है, रात को घर देर से आते तो हमें डांटती है, है ना? वो हमारे लिए कुछ तो करना चाहती है लेकिन कुछ तो गड़बड़ कर देती है ना? वो हमारे लिए कुछ तो करना चाहती है लेकिन कुछ तो गड़बड़ कर देती है, तो हम उस पर चिल्लाते हैं, हम उसको डांटते हैं। तू कशाला करायला गेली, माझी मी केलं असतं, काय गरज होती करायची? हम चिल्लाते हैं, हम डांटते हैं। अरे लेकिन वो उसकी गलती है क्या? क्या उसने वो आपको अनहैप्पी करने के लिए किया? नहीं, शी वॉन्टेड टू हेल्प यू। उसे आपको मदद करनी होती है ना? आपको वो क्यों डांटती है रात को देर से आने के बाद? वो चाहती है ना, शी केयर्स फॉर यू, दैट इज वाई। लेकिन आप क्या करते हो? आप इरिटेट होते हो, आप एंग्री होते हो, आप गुस्सा करते हो माँ पे, है ना? लेकिन आपको अंदर से पता है हर इंटेंशन इज, उसका इंटेंशन क्या है? मुझे खुश रखना उसका इंटेंशन है, मुझे हैप्पी रखना उसका इंटेंशन है, मुझे प्रोटेक्ट करना उसका इंटेंशन है। वी नो द इंटेंशन ऑफ आवर मदर, गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई वी ऑल हैव ट्रस्ट ऑन आवर मदर। हमेशा याद रखिए, है ना? वी ऑलवेज हैव ट्रस्ट ऑन आवर मदर। हमें हमारी माँ पे हमेशा विश्वास रहता है, हम हमारी माता पे हमेशा विश्वास रखते हैं, हमेशा, ऑलवेज, वी डू इट नेचुरली। वैसे ही आप सोचिए, जैसे कि आपको अपनी माँ पे विश्वास है, वैसे ही आपके लाइफ में और कोई है क्या जिस पे आप विश्वास रखते हो? क्या आपका आपके पिताजी के प्रति पूर्ण विश्वास है? नहीं है तो याद रखिए, आपको रखना चाहिए, बिकॉज हिज इंटेंशन विल बी ऑलवेज टू मेक यू हैप्पी। क्योंकि आपके पिताजी का भी हमेशा इंटेंशन यही रहेगा कि वो आपको खुश रखें। his intention will always be to make you happy, आपके पिताजी का भी। तो इसलिए आपको आपके पिताजी पे भी हमेशा ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है। विश्वास रखिए कि आपके पिताजी आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। ही वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, वो आपको खुश रखना चाहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हिज कॉम्पिटेंस।
अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपको उन्हें कॉम्पिटेंट बनने में मदद करनी है. देन you need to make him to be competent. Clear? It is your duty, है ना? So ये फर्स्ट वाला, try to improve upon his competence, but not to get irritated, not to get angry, not to have a feeling of opposition. नहीं करना, ये नहीं करना है. Getting it? You need to have a trust, है ना? So सोचिए, आपको ऐसे आपके रिलेशनशिप में जितने लोग हैं उनमें से कितनों पे आप विश्वास रखते हैं? विश्वास की डेफिनेशन मैंने बताई है ना? विश्वास इन 3 क्वेश्चन से कल पता चलेगा. डज द अदर वांट टू मेक मी हैप्पी? अगर इसका आंसर यस आएगा तो यस, यू हैव ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन. इफ दिस वन, इज द अदर एबल टू मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑलवेज हैप्पी? इसका आंसर यस आएगा तो यस, यू ट्रस्ट अदर्स. ये लास्ट वाला, इज द अदर एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी? इसका आंसर यस आएगा तो यस, यू हैव ट्रस्ट ऑन अदर. सो इन 3 क्वेश्चंस पे आप आपके रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उनको जज कीजिए और देखिए क्या उनका इंटेंशन आपको खुश रखना है. अगर उनका इंटेंशन आपको खुश रखना है तो आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए. अगर उनका इंटेंशन आपको खुश रखना है तो आपको उन पे ट्रस्ट रखना चाहिए. क्लियर? So let us see now what happens generally in our society. Society में generally क्या होता है? So generally we don't see intention and competence separately. Since competence is generally lacking, the feeling of unconditional acceptance is almost completely missing. Feeling of unconditional acceptance. Unconditional acceptance मतलब अगर मेरे पापा मुझे महीने का 10,000 रुपए खर्च के लिए देंगे तो मेरा उन पे विश्वास है, नहीं तो नहीं है. सो दिस इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस. अनकंडीशनल का मतलब है मेरे पापा मुझे पैसे दे ना दे, मेरा उन पे पूर्ण विश्वास है. दिस इज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली मिसिंग. कहाँ पे? सोसाइटी में, नॉट इन फैमिली. rather there is a feeling of opposition. कहाँ पे? सोसाइटी में, not in our family. with that we reinforce wrong assumptions like, इसलिए आज तक हमने क्या assumptions रखे हुए हैं? strangers can't be trusted. जो लोग हमें अननोन है उन पे हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए. ट्रस्ट इज डेवलप्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम. अगर आपको ट्रस्ट डेव्हलप करना है तो समय बीतना चाहिए. वेळेनंतरच विश्वास तयार होतो. मीन्स फॉर एक्झाम्पल, मी नवीन नवीन फर्स्ट इयरला आलेलो आहे, मला 2 रूम पार्टनर आहेत, पण माझा त्यांच्यावरती विश्वास नाही. मग माझा माझ्या रूम पार्टनरवर विश्वास कधी बसणार? 4 वर्षाची डिग्री झाल्यानंतर. इज इट राईट थिंग? So here is a question mark. Then never trust anyone. कुणावरही विश्वास ठेवू नका. And we always listen these 3 sentences. We always listen these 3 sentences. लेकिन ये गलत है क्या? ये प्रस्ताव है. Sometimes yes, sometimes no. है ना? ये हम कैसे जान सकते हैं? इसे हमें हमारे बिहेवियर में उतारना होगा. वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग इन आवर लिविंग, देन वी नीड टू जज. पहले आप अपने लाइफ में इन बातों को इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए. स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट करके देखिए, व्हाट इज योर आउटपुट, देन गिव इट्स आंसर. क्लियर? किसी पे तो विश्वास रखिए, देन गिव द आंसर ऑफ थर्ड. किसी पे तो जल्दी विश्वास रखिए और देखिए क्या होता है, और फिर इसका आंसर दीजिए. है ना? These 3 are the proposals.
ये प्रपोजल्स है, आपको इन पे क्या करना है, यू नीड टू वेरीफाई दिस, यू नीड टू वेरीफाई दीज, ये आपको वेरीफाई करनी है with your natural acceptance and by inculcating it in your behavior. ठीक है, so this is what we have discussed in respect of trust, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं ना. चौथा, so this is what we discussed with trust, जो कुछ भी हमने अभी देखा वो ट्रस्ट के बारे में देखा. So its time is about to get end. So after trust, next lecture will start with next value. अगले लेक्चर में दूसरी वैल्यू देखेंगे हम, सम्मान. इस लेक्चर में हमने क्या देखा, ट्रस्ट. वी हैव सीन ट्रस्ट. नेक्स्ट लेक्चर विल सी व्हाट इज मीन बाय रिस्पेक्ट, सम्मान किसे कह सकते हैं. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. और समवन वांट टू आस्क समथिंग? No one want to ask anything? Shall we stop? Oh, shall we stop? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you.